So, Mr. Vandika, quickly I summarize what we are trying to understand in the difference between the uniform circular motion and non-circular motion. Now, what I've already told you is that this is bit counterintuitive, and you know, for beginners, it becomes a bit confusing. So, what we have discussed so far is that speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Do we agree till here? This is what we have done in class 9th. Mr. Vandika, do we agree? Yeah. So we know that scalar quantity has magnitude only. So, for example, I take an example of a body which is moving in a circular motion at a 5 meter per second. So, for example, if you look at the fan, the fan would be, let us assume that it is moving in circular motion at 5 meter per second. Are we clear till here? So it will be, Yeah. let us assume that there is no breeze. There is no breeze in the room. We can assume that the windows are closed. So it will have a constant speed of 5 meter per second. Yeah. But then Yeah. I take any point P, any point Q, and any point R. This P would be moving in this direction, this Q would be moving in this direction, and this R would be moving in this direction. Have you understood what I said? Yeah. So this is P, this is Q, this is R. This is you looking at the fan, which is vertically above you. Now at this point, the speed is 5 meter per second towards this direction. It is 5 meter per second in this direction. It is 5 meter per second in this direction. So at each point, the magnitude is the same, but the direction is changing. Are we clear? Yeah. Now, because speed is a scalar quantity, but velocity is a vector quantity. So what we can say is that because the direction is changing, the magnitude of the velocity remains 5 meter per second, but the direction keeps changing. Direction keeps changing, and therefore the velocity will keep changing. Have you understood what I've said? Yeah. इसका मतलब ये हुआ यार, if you try to you know think it through, स्केलर अगर चेंज हो रहा है, इफ स्केलर इज चेंजिंग, तो स्केलर जो चेंज होगा वो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा तभी स्केलर चेंज होगा. एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. बट जो वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड सेम रह सकता है, बट अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया, लेट अस से टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, मैग्नीट्यूड सेम है, बट अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया तो भी वेक्टर चेंज हो सकता है. एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. भाई कंफ्यूज होनी हो रहे? नहीं. मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्केलर अगर चेंज हो रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बट वेक्टर जो है, even if the magnitude remains the same, vector can still change if the direction is changing. Am I making sense? Yeah. भाई सीधी समझ आया नहीं? So what I'll say is that this point on the fan, इसका speed तो same है, but at each point, at point P, at point Q, at point R, because it is moving in a different direction, so the velocity of this point is changing. Am I making sense? Yeah. Similarly, जो एक्सेलरेशन है दैट इज कॉल्ड द चेंज इन वेलोसिटी. अब वेलोसिटी यार वो जो चेंज हो रहा है, हो सकता है मैग्नीट्यूड ना चेंज हो रहा हो बट डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है. एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है और तो भी ये एक्सेलरेटेड मोशन है. एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. तो कॉमन लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं कि इवन इफ, लेट अस अज्यूम, वन सेकेंड,
So let us assume that you are taking a circular curve in your car, in your car. And let us say that your car is moving at 50 kilometer per hour. Am I making sense? Yes. आप जब टर्न ले रहे हैं आप जब टर्न ले रहे हैं आप जब टर्न ले रहे हैं आप जब ऐसे टर्न ले रहे हैं आप जब ऐसे टर्न ले रहे हैं, सो इन आवर कॉमन लैंग्वेज व्हाट वी से इज दैट द स्पीड एंड द वेलोसिटी इज सेम. हम ये बोलेंगे कि यार जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही तो है 50 किलोमीटर पर आवर. एम आई मेकिंग सेंस? Yes. बट यू एंड मी बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट वी अंडरस्टैंड कि भाई इसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, बट कार की जो वेलोसिटी है इट इज चेंजिंग. क्योंकि यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में है. एम आई मेकिंग सेंस? तो Yes. सर्कुलर मोशन में बेसिकली व्हाट आई एम डिस्कसिंग फॉर द लास्ट 10 मिनट्स इज सर्कुलर मोशन में बॉडी is always accelerated. Am I making sense or not? Yeah. You might have a situation. See, you might have a situation where at this point you are at 50 kilometer per hour. At this point you are at 51 kilometer per hour. At this point you are 52 किलोमीटर पर आवर. अब उसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो भी ये एक्सेलरेटेड मोशन तो भाई है ही. नहीं समझ में आया? समझ रहे. और इनिशियल केस में जो हमने अभी केस किया उसमें चाहे ये 50 किलोमीटर पर आवर पे यहाँ पर है, ये 50 किलोमीटर पर आवर पे यहाँ पर है, और ये 50 किलोमीटर पर आवर पे यहाँ पर है, तो भी ये एक्सेलरेटेड मोशन है. बट ये वाले केस में वो एक्सेलरेटेड मोशन किस वजह से है? उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है. बट सेकेंड केस में एक्सेलरेटेड मोशन वो इसलिए है बिकॉज इसका जो डायरेक्शन है सिर्फ वो चेंज हो रहा है, जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है. एम आई एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली और नॉट? Yes. तो मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेलरेटेड मोशन इन सर्कुलर मोशन इन सर्कुलर मोशन के दो रीजन हो सकते हैं. मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक रीजन ये हो सकता है. और दूसरा, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी ये एक्सेलरेटेड मोशन है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो वो एक्सेलरेटेड है. नहीं समझ में आया? समझ रहे. तो फिर इन दोनों के केसेस को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? इसको डिफरेंशिएट ऐसे करोगे कि इसको व्हेन मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, सो लेट अस अज्यूम 50 मीटर पर सेकंड पे यू आर टेकिंग अ टर्न, सो इसको बोल दिया जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और इस केस में व्हेन द लेट अस से द स्पीड चेंजेस एज वेल एज द डायरेक्शन चेंजेस, तो इसको बोल दिया जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दिस वन थिंग, एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? Yes. भाई ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं. पहली तो ये कि हर सर्कुलर मोशन जो है, एवरी सर्कुलर मोशन, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो वो एक्सेलरेटेड है, चाहे उसकी स्पीड सेम है. एंड द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये डिफरेंस होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, देखिए एक बात समझिए, सर्कुलर मोशन तो दोनों ही है, सर्कुलर मोशन तो दोनों ही है, बट यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड में आप कार आपकी डायरेक्शन चेंज कर रही है, और इसमें वेरिएबल स्पीड पे डायरेक्शन चेंज कर रही है. भाई बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. समझ रहे. अब मैं अभी यहाँ पर नहीं बोलना चाहता, बट हमें नेक्स्ट लेक्चर में करना ही पड़ेगा तो समझना तो पड़ेगा ही. सो इफ यू सी एनी ऑब्जेक्ट विच इज टेकिंग अ टर्न, तो ये सर्कुलर मोशन है. लेट अस हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही करते हैं, तो मैं एवरी टाइम आई विल बी यूजिंग यूसीएम. यूसीएम का मतलब ये हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूसीएम का मतलब ये हुआ कि जो कर्व आप ले रहे हो वो कांस्टेंट स्पीड से 550 किलोमीटर पर आवर पे कर्व ले रहे हो. तो समझते हैं, एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. और क्योंकि आप बोल चुके हो कि एवरी सर्कुलर मोशन
every circular motion is accelerated motion. तो भाई हमने अभी 3-4 लेक्चर से यही तो कर रहे हो कि अगर एक्सेलरेशन है तो आपको एक नेट फोर्स हमेशा चाहिए। नहीं समझ में आया? सम, So whenever your car is taking a circular turn, every times every time it requires a certain force which will take care of this circular motion. अगर वो circular motion वाली force नहीं है तो आपकी जो बॉडी है वो circular motion नहीं कर पाएगी। नहीं समझ में आया मैं समझते का? समझा। I'll give you a very simple example. So for example, let us assume that it's a rainy day, and there is a oil spillage on the road, and a car is trying to take a circular turn. इसे भी क्या लगता है सर्कुलर टर्न ले लेगी? नो, इट कांट टेक अ सर्कुलर टर्न, इट विल स्लिप. व्हेन वी से स्लिप, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि जो कार है वो ऐसे स्किड कर जाएगी, वो सीधा ही चली जाएगी, वो टर्न ले ही नहीं पाएगी. मैं समझ गया, एम आई मेकिंग सेंस? या क्योंकि टर्न लेने के लिए ये जो आप यहाँ पर टर्न ले रहे हैं, ये जो आप यहाँ पर टर्न ले रहे हैं, ये ऐसे करके जो आप टर्न ले रहे हैं, इसके लिए भाई आपको ये सिग्मा एफ चाहिए. एम आई मेकिंग सेंस? या बिकॉज दिस इज समथिंग दैट विल बी डिस्कसिंग डाउन द लाइन. और ये जो सिग्मा एफ, हमारे केस में ये जो सिग्मा एफ है वो हमें कौन देता है? वो हमें देती है फ्रिक्शन. एम आई मेकिंग सेंस? या सो प्लेन रोड है, उसमें यू वांट टू टेक अ सर्कुलर टर्न. तो उसका उसको मोड़ने के लिए, बेसिकली उसको अंदर की तरफ रखने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए होगा. और इफ यू रिमेंबर, अगेन दिस इज अ क्लास टेंथ का ही काम, क्लास टेंथ का आईसीएससी फिजिक्स का ही काम. This is what everything that I am discussing right now, you have already done in class 9th and 10th. वो आपको समझ आया था नहीं आया था वो अलग बात है, बट काम वही है क्लास 9th और 10th का. सो दिस इफ यू रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रीपीटल फोर्स. दिस is one thing. Am I making sense? या So most probably I think most probably your teacher would have taken an example so that this is Miss Avantika, and Miss Avantika has this let us assume she has this thread जिसमें she has a stone. तो मिस अवंतिका को वो स्टोन को सर्कुलर मोशन देने के लिए शी ऑलवेज हैज टू अप्लाई अ फोर्स विच इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स. एम आई मेकिंग सेंस? या क्योंकि जब तक ये इनवर्ड फोर्स है मिस अवंतिका, तब तक ही ये जो स्टोन है ये सर्कुलर मोशन में चल पाएगा. क्योंकि जैसे ही आप इस स्टोन को छोड़ेंगे, इफ एट एनी पॉइंट यू लीव द स्टोन विल फ्लाई अवे टेंजेंशियली. डू यू रिमेंबर? दिस इज क्लास टेंथ का पार्ट. थोड़ा याद आया? या या तो अभी तक हमने जो भी किया है, दिस इज एवरीथिंग दैट वी हैव डन टिल नाउ. दिस एवरीथिंग इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ योर क्लास 9th 10th के लेक्चर्स. दिस स्केलर वेक्टर स्केलर वेक्टर स्पीड वेलोसिटी, दिस इज फर्स्ट डिस्कस्ड इन क्लास 9th. और उसके बाद हम आए इस पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हमारा है क्लास 10th का. और फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं हुआ था मिस अवंतिका, बट व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, बिकॉज अभी हम क्लास 11th में और थोड़ा हमने आर एन डी किया हुआ है. सो इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि अगर आपने बोल दिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, कहने को तो यूनिफॉर्म है बट उसको सर्कुलर मोशन, वो एक्सेलरेटेड मोशन है. और अगर वो एक्सेलरेटेड है तो उसको फोर्स चाहिए सर्कल में मूव करने के लिए. और वो जो फोर्स है उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि क्लास 10th में आपने पहली बार सुनी थी. मिस अवंतिका, एम आई मेकिंग सेंस? या तो अगर तक अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया, तो यू जस्ट रिमेंबर टू थिंग्स. वन, एवरी
body moving in a circular track is undergoing acceleration. Are we clear? आपको कुछ समझ नहीं आया तो भी this is what you should remember. Even if there is no change in speed. जैसे one thing, are we clear? भाई स्पीड नहीं भी चेंज हो रही, 50 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, आपका पंखा आपके सिर पे घूमता जा रहा है, तो भी वो जो पंखे पंखे की जो मोशन है उसको क्या बोला जाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन. दिस वन थिंग, आर वी क्लियर? Yeah. एंड द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट if it is a accelerated motion, if there is acceleration, then it would be due to a force. फोर्स कहाँ से आ गई भाई? क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन सर ने आपको ये बताया कि अगर एक्सेलरेशन है तो भाई फोर्स ढूंढो, वो तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी. बिना एक्सेलरेशन के अगर एक्सेलरेशन हो रही है तो फोर्स होगी. नहीं समझ में आया? मैं समझती हूँ. समझ रहा अगर फोर्स है, अगर रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, मतलब आप इसको किसी भी तरह देख सकते हैं. आप इसको ऐसे देख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू सिग्मा एफ. आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगी. या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं जो यूजुअली हम देखते हैं कि भाई फोर्स है इसलिए एक्सेलरेशन होगी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप इसी सेम इक्वेशन को दो तरह देख सकते हैं. आप इसको देख सकते हैं सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, या आप इसको देख सकते हैं कि एम ए इज इक्वल टू सिग्मा एफ. इसका मतलब ये हुआ, ये इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि अगर नेट फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगी, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन है तो कोई ना कोई नेट फोर्स होगी. और हमने ये समझ लिया कि सर्कुलर मोशन में ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, इसको बोला जाता है सेंट्रीपीटल फोर्स. मिस्टर वन, आर वी क्लियर? या ओके. तो मैंने आपको स्कैन भेजा हुआ है. ये सब जो मैंने ज्ञान दिया है, ये ज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा. मैं आपको सिर्फ, ऑफ कोर्स ये मैं आपको अभी बताता हूँ, बट दिस इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग. ये मैं आपसे बात कर रहा था. दीज आर द वर्ड्स दैट यू शुड बी नाउ फेमिलियर, दैट दिस इज सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन. इसको सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन बोलते हैं. फिर आपको ये देखिए, ये जो सेंट्रीपीटल फोर्स है, ये सेंट्रीपीटल फोर्स, ये देख रहे हैं आप? सेंट्रीपीटल फोर्स हमेशा जो सर्कुलर मोशन है उसकी एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगी. एम आई मेकिंग सेंस? या तो ये हमने एग्जांपल लिया कि जिसमें आपकी कार कैन ओनली टेक अ टर्न अगर ये बाजू कोई ना कोई फोर्स उसको घुमा रही हो. और हमने ये भी डिस्कस किया कि वो जो फोर्स है हमारे केस में, वो फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन अगर ना हो, सो फॉर एग्जांपल इफ द रोड इज वेट और आईसी, तो फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए वो जो कार है वो स्लिप हो जाती है. एम आई मेकिंग सेंस? या और फिर एक और फोर्स भी रहती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वो इंडिपेंडेंट हम बात करेंगे. बट द पॉइंट इज कि नाउ व्हेन यू रीड दिस चैप्टर, बस ये यहीं तक ये चैप्टर है. सो व्हेन यू रीड दिस चैप्टर नाउ, थिंग्स शुड बी मेकिंग सेंस. आर वी क्लियर टिल? या Okay. I'll restart the meeting and then I'll tell you this. Uh, ये जो फॉर्मूले हैं, ये फटाफट ये फॉर्मूले कर लेंगे. ओके. आई एम सेंडिंग यू द लिंक फॉर द न्यू मीटिंग. या ओके सर.